محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی درستگی بقیہ اعمال کی بھی درستگی ہے اور نماز کی خرابی بقیہ اعمال کا بگاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز دنیا کے غموں اور بلاؤں سے راحت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ نماز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سبب ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں نور ہے۔ نماز کا ترک کرنا، چھوڑنا کفر ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے۔ نماز بندے کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے۔ ترک نماز، نمازوں کو چھوڑنا جہنم میں ایک وادی ہے، وادی سقر میں داخلے کا سبب ہوتا ہے، داخلے کا سبب ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ریاست میں ماں و بچے کی صحت کی حفاظت کے لیے حکومت کا ایک تاریخی اقدام۔ کاماریڈی کلیکٹریٹ سے 9 اضلاع میں کیفیات نیوٹریشن کٹ اسکیم کا 9 اضلاع میں ریاستی وزیر ہریش راؤ کے ہاتھوں آغاز۔ بھارت مکتی مورچے کی جانب سے یوپی لکھنؤ میں منعقد ہونے والے اجلاس میں متحدہ ضلع ایم ایل سی کے کویتا کو قومی صدر بھارت مکتی مورچے نے کیا مدعو۔ ایک جھوٹ کا 1000 بار کہنے سے سچ بدل نہیں جاتا۔ شراب گھوٹالے میں نام شامل کرنے پر انہوں نے مرکزی بی جے پی کو دیا جواب۔ ہندوستان کی کسی بھی ریاست میں جو اسکیم نہیں وہ ریاست تلنگانہ میں موجود۔ کرسمس کے موقع پر BRS حکومت کی جانب سے فراہم کردہ ملبوسات کی عیسائی برادری میں MLA بی گالا گنیش گپتا کے ہاتھوں تقسیم۔ خواتین کی تربیت، دینی علوم کی سرفرازی کے لیے مدرسہ ام ہانی نیل بناس کا مولانا حافظ خواجہ نذیر الدین صاحب کے ہاتھوں شاندار پیمانے پر انعقاد۔ تلنگانہ مائنارٹی کارپوریشن کی جانب سے فراہم کیے جا رہے لونز کے استفادہ کنندگان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، وہ انکم سرٹیفکیٹ کے حصول و بینک کے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے۔ ضلع کلکٹر سے مجلس اتحاد المسلمین قائدین نے ملاقات کرتے ہوئے کیا مطالبہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ مائنارٹی کارپوریشن کی جانب سے فراہم کیے جا رہے لونز کے استفادہ کنندگان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، وہ انکم سرٹیفکیٹ کے حصول و بینکس کے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے۔ ضلع کلکٹر سے مجلس اتحاد المسلمین قائدین نے ملاقات کرتے ہوئے کیا مطالبہ۔ شہر نظام آباد ڈپٹی میئر ادریس خان و ضلع مجلس اتحاد المسلمین انچارج و بلدیہ فلور لیڈر شیخ الفاضل کے ہمراہ تمام مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹرز نے ضلع کلکٹر نارائن ریڈی سے ان کے دفتر پر خصوصی ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور حکومت کی جانب سے اقلیتوں کو فراہم کیے جانے والے اقلیتی لونز کی تعداد میں اضافہ کرنے و بینک کی جانب سے آزادانہ طور پر لونز فراہم کرنے کا مطالبہ کیا اور شہر کے بینکس کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اقلیتوں کو بآسانی لونز فراہم کرنے کے لیے تبادلہ خیال کیا۔ اسی طرح
انکم سرٹیفکیٹ کی بھی اجرائی جلد کرتے ہوئے عوام کو سہولت پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر ماجد صدیقی، عبدالعلی باغبان، محمد غفور مقیم، محمد ریاض احمد، محمد نصیر، میر ارشاد علی، سمیر، ہارون خان، اعجاز حسین، شیخ سلیم، سید رفیع، سرفراز خان، محمد مستحسن، افسر بیگ، مون کارپوریٹر محمد شہباز، ارشد پاشا و دیگر موجود تھے۔ صدر محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر آج نظام آباد یونٹ، جس میں ڈپٹی میئر ادریس خان صاحب سمیت تمام ہی کارپوریٹرز اور جماعت کے ذمہ دار لوگ نظام آباد کلکٹر صاحب سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ آنے والے دنوں میں جو گورنمنٹ کی طرف سے لون کی جو اسکیم کے ذریعے جو غریبوں کو پیسہ لون دیا جائے گا کہہ کر، جس میں ہمارا مقصد یہ تھا، کلکٹر صاحب کے ذریعے ہمارا یہ میسیج ہم دینا چاہ رہے تھے کہ یہ جو اماؤنٹ کا جو ذکر کیا گیا ہے 50 کروڑ روپے، یہ ناکافی اس وجہ سے کہ حیدرآباد کے بعد نظام آباد ایک ایسا ہیوی پاپولیٹڈ مائنارٹی ایریا ہے، مسلم خصوصاً زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ اس لیے کلکٹر صاحب سے ہم بارہ یہ کہا کہ نظام آباد کے لیے زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ سینکشن کرائیں تاکہ یہاں کے غریب عوام کو اس کا فائدہ مل سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ بینک کنسلٹ کے لیے خصوصاً یہ مائنارٹی ایریوں میں جو بینکس ہیں، 2-4 بینک ہے، وہاں بھی ایک میسیج دیجیے کہ وہاں پر فیلڈ آفیسر وغیرہ اننیسسری ہمارے جو لوگ لون لینے کے لیے کنسلٹ لینے کے آتے ہیں ان کو نہ ستائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایم آر او آفس میں تو ایم آر اوز کا بھی ہم نے کہا کہ جلد سے جلد اس کا انکم سرٹیفکیٹ جیسا ہی آن لائن کرتے اس کو پاس کیا جائے۔ اور ایک بات خاص یہ کہنی تھی کہ اس درمیان بہت سارے ایجنٹس لوگ آپ کے درمیان آئیں گے اور غیر ضروری دلاسا دلا کر آپ کو لون دلائیں گے بول کر کہیں گے۔ یہ آپ راست آن لائن لون اسکیم ہے، آپ بذات خود میسوا پہ جا کے آن لائن کریں۔ اگر کوئی بھی اس میں کوئی گلٹی اگر غیر ضروری آپ کو اگر ہراساں کر رہا ہے تو آپ نظام آباد ایم آئی ایم یونٹ ہو یا ایریا کارپوریٹر سے کسی سے بھی کنسلٹ کریں یا قریبی پولیس اسٹیشن میں اس کا کمپلینٹ کریں۔ کسی کو کہ کوئی روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اسکیم دی جا رہی ہے بہت خالص ہے، اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس میں صرف اور صرف آپ اپنی ایبیلٹی پہ لون لے سکتے ہیں۔ ہمارا نظام آباد یونٹ ایم آئی ایم یونٹ کا خصوصاً نظام آباد اور بودن اور آرمور جو پاپولیٹڈ ایریا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یونٹ یعنی اماؤنٹ زیادہ سے زیادہ نظام آباد کے لیے سینکشن کرنے کے لیے ہم نے کلکٹر صاحب کو نمائندگی کی اور کلکٹر صاحب نے ہمیں تیقن دیا کہ میں اپنے طرف سے بھی یہ میسیج دیتا ہوں کہ یہاں پر مائنارٹی زیادہ رہتے ہیں تو یہاں کے یونٹس یہاں اماؤنٹ زیادہ سے زیادہ نظام آباد ڈسٹرکٹ کے لیے، کیونکہ بودن اور آرمور بھی نظام آباد ڈسٹرکٹ کو احاطہ کرتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم امید کرتے ہیں اور کے سی آر صاحب سے حسن یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ وہ نظام آباد کے لیے زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ سینکشن کرے۔ ہم جو بھی مسائل ہم کو آتے ہیں یقیناً ہمارے بس کے اوپر رہتا ہے تو ہم اپنے ہائی کمان کے سامنے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارا میسیج ہم ہمارے ہائی کمان کو بھی بھیجا ہے، ضرورت پڑنے پر ہم حیدرآباد جا کر بھی وہاں سے بھی پریشرائز کریں گے تاکہ نظام آباد ڈسٹرکٹ کے لیے خصوصاً اماؤنٹ زیادہ سے زیادہ آئے۔ خواتین کی تربیت و دینی علوم کی سرفرازی کے لیے مدرسہ امہانی للبنات کا مولانا حافظ خواجہ نذیر الدین صاحب کے ہاتھوں شاندار پیمانے پر انعقاد۔ آج شہر نظام آباد حضرت مولانا حافظ خواجہ نذیر الدین صاحب حیدرآباد کی قیادت میں مدرسہ امہانی للبنات کا شاندار پیمانے پر افتتاحی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد اسلامی اخلاق و آداب معاشرتی ترقی کی جانب گامزن کرنا ہے۔ اس تقریب میں منتظمین مدرسہ مقبول ہاشمی، محمد حافظ سعید، حافظ یوسف و ڈپٹی میئر ادریس خان، ضلع مجلس اتحاد المسلمین انچارج صدر شیخ فاضل، میونسپل ملازم محمد مسیح و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا حافظ خواجہ نذیر الدین صاحب نے کہا کہ آج کے دور میں خواتین کو دینی علوم حاصل کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی ہے جو اپنے گھر کو جنت اور جہنم بنا سکتی ہے اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہوئے مستقبل میں معاشرے کے لیے فائدہ بخش بنا سکتی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے خواتین و معاشرے کی حفاظت و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اس موقع پر انہوں نے مدرسے کی خدمات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے 9618729251 9
9395444550 पर राब्ता करने की अपील की। तो ये टाइम पे बहुत सी बच्चियां स्कूल और कॉलेजेस हो जाती हैं, तो इनको इस्तेफादे की कोई शक्ल नहीं। लेकिन अब अगर सुबह शाम का जो टाइम है इससे इस्तेफादा करना चाहें तो ख़ास तौर से स्कूल के और कॉलेज की बच्चियों से मैं गुजारिश करूँ, उनकी तीनों दुनिया बेहतर से बेहतर बनेगी। इस मदरसे का नाम मदरसे उम्मे हानी लिल बनात रखा गया। हज़रत उम्मे हानी जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचेरी बहन का नाम है। इनके वालिद अबू तालिब हैं। अगरचे कि अबू तालिब इस्लाम कबूल नहीं किए, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर वक्त तक उन्होंने हिफाजत की और उनकी पूरी किफ़ालत उन्होंने की। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़े मेले कैंप दफ्तर पर ईसाई बिरादरी को क्रिसमस गिफ्ट के तहत मलबूसात की फराहमी अमल में लाई। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ एमएलए कैंप दफ्तर पर ईसाई बिरादरी को क्रिसमस गिफ्ट के तहत मलबूसात की फराहमी अमल में लाते हुए तमाम ईसाई बिरादरी को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बातज़ा अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में हर साल क्रिसमस तक़ारीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए क्रिसमस गिफ्ट के तहत ईसाई बिरादरी को मुफ्त मलबूसात की फराहमी अमल में लाने के साथ साथ हुकूमत की जानिब से ईसाई बिरादरी के लिए क्रिसमस डिनर का एहतमाम करते हुए सरकारी तौर पर त्यौहार को मुनक़्क़िद करने का इजहार किया। इस तरह से इस माह की 24 तारीख को शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में क्रिसमस तक़ारीब का सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मियां नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, पास्टर जोसेफ जॉनसन, कॉर्पोरेटर्स, टीआरएस पार्टी के कायदीन, మైనారిటీ వెల్ఫేర్ అహ్దేదారాన్ ने शिरकत। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రం ఏర్పడిన నుంచి ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా పండుగను జరపాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ప్రతి నియోజకవర్గానికి డబ్బులు పంపించి దాంతో పాటు బట్టలు కూడా పంపించి పేద క్రైస్తవులకు కడుపు నిండా భోజనం పెట్టి బట్టలు కూడా పెట్టి అధికారికంగా హైదరాబాద్లో మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు। మరి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా స్వయంగా వారు వెళ్ళి మరి క్రైస్తవులను ఉద్దేశించి మాట్లాడి వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి వారితో పాటు భోజనం చేసి వారి కానుకలు అందజేస్తూ ఉన్నారు। अनकरीब मुनक़्क़िद होने वाले इंतख़ाबात में ज़िले टीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए टीआरएस कायदीन व कारकुनान को सख्त मेहनत करने की बीआरएस आर्मर हल्का असम्बली इंचार्ज अभिलाष रेड्डी की अपील। डोनकेश्वर मंडल के डट्टापुर देहात में जिले टीआरएस सदर आर्मर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के अहकामात व आर्मर हल्का असम्बली टीआरएस पार्टी इंचार्ज राजेश्वर के मुताबिक टीआरएस यूथ सेक्शन जिले के कायद पी अभिलाष रेड्डी के जरिए निगरानी में टीआरएस बूथ सेक्शन व कारकुनान का इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी की काविशों के सबब रूप अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के बारे में मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए अनकरीब मुनक़्क़िद होने वाले इंतख़ाबात में जिले टीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी बनाने का इजहार किया। दहली शराब घोटाले के चार्जशीट में बीआरएस रुकन कौंसिल के कविता का नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में शामिल किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने दहली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता साहिबा का नाम इंडो स्प्रिट के एमडी महेंद्र के खिलाफ दायर चार्जशीट में शामिल किया गया, जिस पर मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने बिलवास्ता तौर पर बीजेपी के खास साबिक एमएलए कोमटी रेड्डी व राजगोपाल रेड्डी पर ट्वीट करते हुए कहा कि जल्दबाजी व जुबान को काबू में रखे बगैर मेरे नाम को 2 मरतबा या 28,000 मरतबा कहने से गलत सही नहीं होने के ताल्लुक से कहा कि बीजेपी की जानिब से महज सियासी इंतकाम लेने के लिए इनकी तरफ से आयद करदा बेजा इल्जामात में कोई सच्चाई न होने का इजहार किया। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा के मुकाम पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पीआर गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िदा क्रिसमस तक़ारीब में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों ईसाई बिरादरी में मलबूसात की फराहमी अमल में लाई गई। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा के मुकाम पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुकामी पीआर गार्डन फंक्शन हॉल में क़याम अमल में लाए गए क्रिसमस तक़ारीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए ईसाई बिरादरी को दिल की गहराई से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बातज़ा असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी
ने ईसाई बिरादरी में मलबूसात की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से वाबस्ता त्यौहारों के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मलबूसात की फराहमी अमल में लाने के अलावा हर एक तबके के साथ एकसा बर्ताव करते हुए रियासती हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। ఎవరి మతాన్ని ఎవరి ఆచరణ ఎవరి పద్ధతులు వాళ్ళు ఆచరిస్తారు ఆ విధంగా పూజిస్తుంటారు. అందులో భాగంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఇంతకు జ్ఞానేంద్ర చెప్పినట్టుగా క్రిస్టమస్ పండుగ రోజు కేవలము క్రైస్తవుల పండుగనే అనే భావన కలగకుండా ఈ పండుగ తెలంగాణ ప్రజలు యావత్తుకు చెందినటువంటి పండుగ అనే భావన కలిగే విధంగా అన్ని ప్రాంతాలలో ఈ బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమం, విందు కార్యక్రమం बालकुंडा मंडल के मुकाम पर हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम पर मबनी तरक्याती कामों का जिले एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने लिया जायजा। जिले एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े बोदेपल्ली, जलालपुर, नागापुर, बुसापुर गवर्नमेंट स्कूलों में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट स्कूलों के बरक्स पुरकशिश बनाने की ओहदेदारान को हिदायत दी और कहा कि हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत बालकुंडा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में वाक़ई सरकारी स्कूलों में कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुंचाने के अलावा रोज़गार तमानियत स्कीम से मुताल्लिक़ा कामों को फिलफुर मुकम्मल करने के साथ साथ ग्रीन चैनल के तहत फंड्स की इजराई अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल एजुकेशन अहदेदार बी राजेश्वर, असिस्टेंट इंजीनियर विनीत कुमार, APO इंदिरा, बोदेपल्ली सरपंच एन रवि, वाइस MPP श्रीकांत वो दीगर मौजूद थे। शहर के आदमू रोड पर वाक़ शाविया गार्डन में रूरल CI नरेश के फर्जन व दुख्तर की पुट्टू पंचाला वलेला प्रोग्राम का इनेकाद। शहर के आदमू रोड पर वाक़ शाविया गार्डन में रूरल CI लोलम नरेश के फर्जन व दुख्तर के पुट्टू पंचाला वलेला प्रोग्राम में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, ZP चेयरमैन विठल राव, मियां नीतू किरण शेखर, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, ZPTC बाजिरेड्डी जगन मोहन, DCMS चेयरमैन मोहन, कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू, एडिशनल DCP गिरिराज, अरविंद बाबू, ACP वेंकटेश्वरलू, नारायणा, CI SI शिरकत करते हुए दुआओं से नवाजा। जय भवानी बिरयानी हाउस का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के आदर्श नगर कॉलोनी में जय भवानी बिरयानी हाउस का इफ्तिताह अमल में लाते हुए मकामी अवाम को जय भवानी बिरयानी हाउस के जायके से लुत्फानंदोज होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मियां नीतू किरण शेखर, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मुकामी कॉर्पोरेटर्स एन लता कृष्णा, TRS कॉर्पोरेटर्स, TRS कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। हामिला खवातीन खून की कमी का शिकार न होने के लिए KCR न्यूट्रिशन किट की फराहमी अमल में लाने का रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव का इजहार। रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा KCR न्यूट्रिशन किट स्कीम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि खवातीन में होने वाले खून की कमी को दूर करने के लिए CM KCR ने न्यूट्रिशन किट का क़याम अमल में लाया है और हर एक किट की कीमत 2000 रुपये होगी और हर एक हामिला खवातीन को 2 मरतबा न्यूट्रिशन किट की फराहमी अमल में लाई जाएगी। इन्होंने कहा कि CM KCR की क़यादत में हर एक घर को साफ व शिफाफ पीने का पानी की फराहमी अमल में लाने के अलावा रियासत के तलबात के लिए 551 रेजिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మా గర్భిణీ తల్లులకి హాలీగా ఉన్నారన్న వారందరి నిండు ఆశీస్సులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మీకు ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అక్క. సమయం తక్కువ కనుక 1 minute మాట్లాడదాం. గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, మంత్రివర్యులు దయాకరణ, నెక్స్ట్ మీరే. మన రాష్ట్ర వైద్య ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు హరీష్ రావు గారికి ఉదయపూర్వకమైనటువంటి మరొక పుత్ర సమానుడు మన జిల్లా బిడ్డ, మనందరి ఆత్మీయులు, గౌరవనీయులు రోడ్డు భవనాల శాఖ మంత్రులు శ్రీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ మంత్రివర్యులకు, గౌరవ శాసనసభ్యులకు, అక్కడ మంచిగా రెస్ట్ తీసుకోవాలి, మంచి ఆహారం తినాలి
అంటే వాళ్ళు పనికి పోయి ఎంతైతే సంపాదిస్తారో ఆ సంపాదన గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలి. నెలకు 2,000 చొప్పున ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ కంటే మొదలు 3 నెలలు, డెలివరీ తర్వాత 3 నెలలు అవి ఇంట్లోనే ఉండాలి, తల్లి రెస్ట్ తీసుకోవాలని చెప్పి 12,000 రూపాయలు ఇస్తున్న సంగతి కూడా మనకు తెలుసు కేసీఆర్ కిట్ ద్వారా. దాని తర్వాత కూడా ఇంకా ఈ రక్తహీనత వల్ల కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతూ ఉన్నది. తల్లులకు మంచి ఆహారం ఇవ్వాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారి యొక్క మానవత్వంతో ఇంతకుముందు హరీష్ రావు గారు చెప్పినట్టు ఒక తల్లి भारत मुक्ति मोर्चा 12वें पसमानदा व खिलती मुलाजमीन फेडरेशन 39वें नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने के लिए BRS MLC के कविता को मोर्चे के जनरल सेक्रेटरी विलास खरत ने किया मधु। भारत मुक्ति मोर्चा व पसमानदा खिलती मुलाजमीन फेडरेशन के नुमाइंदों ने हैदराबाद में मौजूद मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता से मुलाकात करते हुए इस माह की 24 से 28 तारीख तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मोर्चा कौमी सदर वमन मेशरम के ज़ेर निगरानी में मुनक़दा 2 रोज़ा कौमी इजलास में शिरकत करने के लिए MLC के कविता को मधु किया। शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने क्रिसमस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ई सरकारी हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने क्रिसमस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया, जिसमें बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने शिरकत करते हुए ईसाई बिरादरी को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाले तिब्बी अमला, नर्सिंग से वाबस्ता मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। बोधन बार एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में बोधन को ज़िले के तौर पर क़याम अमल में लाने का मुतालबा करते हुए बोधन एडवोकेट की जानिब से अम्बेडकर चौरास्ते कोर्ट पर मुनक़दा भूख हड़ताल आज तीसरे यौम में हुई दाखिल। बोधन बार एसोसिएशन सदर एम गंगा रेड्डी की क़यादत में एडवोकेट शेखर श्रीनिवास, गुमस्ता संगम सदर वाई गंगाधर ने बोधन को ज़िले के तौर पर क़याम अमल में लाने का मुतालबा करते हुए शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर मुनक़िद करने वाली भूख हड़ताल आज तीसरे यौम में दाखिल हो गई। इस प्रोग्राम में JAC सदर सुदर्शन गौड़, आम आदमी पार्टी कायदीन जुनैद अहमद, CPI ML पार्टी कायदीन जी गंगाधर, अक्कीनेनी यूथ संगम सदर गंगा प्रसाद, सीनियर एडवोकेट लिंगम, CHV हनुमंतराव, नायक साइलू, शंकर, श्रीनिवास, बी रमेश, कासिम पाशा, अजहर अहमद के अशोक और दीगर ने शिरकत की। हिंदुस्तानी हुकूमत का हर हुजूमी मुकामात पर मास्क लगाने का मशवरा। दुनिया के बाद ममालिक में कोरोना वायरस के मामलात में अचानक इजाफे के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने चौकसी अख्तियार की है। अवाम को पुरहुजूम मुकामात पर मास्क पहनने का मशवरा दिया गया है। चीन, जापान और अमेरिका समेत कई ममालिक में इस वबा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया की सदारत में दिल्ली में एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि इस आला सतही कमेटी की हर हफ्ते मीटिंग होनी चाहिए ताकि कोरोना की सूरत हाल और इक़दामात पर तबादले ख्याल किया जा सके। मरकजी वज़ीर ने तमाम हुक्काम को चौकस रहने और निगरानी सख्त करने का हुक्म दिया है। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत फराहम करने के लिए स्वामीनाथन कमीशन सिफारिश को रूबे अमल में लाने की AIPKS जनरल सेक्रेटरी प्रभाकर ने किया मुतालबा। आर्मी शहर के मुकाम पर किसान यूनियन कमेटी के ज़ेरे निगरानी कुमार नारायणा भवन में मीडिया का इजलास मुनाकिद किया गया। इस मौके पर JCA के कायद लिंगा रेड्डी प्रभाकर ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत फराहम करने के लिए स्वामीनाथन सिफारिश को रूबे अमल में लाने के लिए अखिल भारतीय प्रगतिशीला रायतु संगम के ज़ेरे निगरानी में दिसंबर 20 से 27 तारीख तक रियासती सतह पर एहतजाजी धरना मुनाकिद किया जाएगा। लिहाजा किसान कसीर तादाद में शिरकत करते हुए एहतजाजी धरने को कामयाब बनाने की अपील की। డిమాండ్లని రైతుల యొక్క సమస్యల్ని లేవనెత్తి చూపుతున్నారే తప్ప తీరా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతాంగం యొక్క సమస్యలు పరిష్కారం చేయకుండా జటిలం చేస్తుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తా ఉన్నాను, మేము ప్రకటిస్తా ఉన్నాం। వర్షం కాకుండా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు రైతాంగం పైన ఉంది। అట్లాగే మద్దతు ధర చట్టాన్ని గ్యారంటీ చట్టం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది। అట్లాగే ఈసారి మొక్కజొన్నల్ని కూడా ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలి, పంటల్ని కొనుగోలు చేయండి,
ప్రతి పంటకు మద్దతు ధర ఇచ్చే విధంగా పార్లమెంట్లో చట్టం చేయండి, లేకపోతే మేము మీకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేస్తామని చెప్పేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే మీ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వమే. కాబట్టి మా అఖిల భారత ప్రగతిశీల రైతు సంఘం ఏ కార్యక్రమాలను తీసుకుందో అది వాస్తవంగా. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। रियासत में माँ व बच्चे की सेहत की हिफाजत के लिए हुकूमत का एक तारीखी इक़दाम। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट से 9 अजला में केसीआर न्यूट्रिशन किट स्कीम का 9 अजला में रियासती वजीर हरीश राव के हाथों आगाज। भारत मुक्ति मोर्चे की जानिब से यूपी लखनऊ में मुनक़िद होने वाले इजलास में मुत्तहदा ज़िले मिलसी के कविता को कौमी सदर भारत मुक्ति मोर्चे ने किया मदऊ। एक झूठ का 1000 बार कहने से सच बदल नहीं जाता। शराब घोटाले में नाम शामिल करने पर इन्होंने मरकजी बीजेपी को दिया जवाब। हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में जो स्कीम नहीं वो रियासत तेलंगाना में मौजूद। क्रिसमस के मौके पर बीआरएस हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मलबूसात की ईसाई बिरादरी में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों तकसीम। खवातीन की तरबियत दीनी उलूम की सरफराजी के लिए मदरसा उम्मेहानी नीलबनास का मौलाना हाफिज ख्वाजा नजीरुद्दीन साहब के हाथों शानदार पैमाने पर इनेकाद। तेलंगाना माइनॉरिटी कॉरपोरेशन की जानिब से फराहम किए जा रहे लोन्स के इस्तिफादा कुनिंदगान की तादाद में इजाफा किया जाए, वो इनकम सर्टिफिकेट के उसूल व बैंक के तरीक़ेकार को आसान बनाया जाए। जिले कलेक्टर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन ने मुलाकात करते हुए किया मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।